گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبروں پر تفصیلات لے کر کے حاضر ہوا۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ پہاڑی علاقوں میں ہمارے تعاون کا سلسلہ، رمضان راشن کٹس کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے۔ جن احباب کو اس میں حصہ لینا ہے وہ نیچے دیے جا رہے واٹس ایپ نمبر پر حصہ لے سکتے ہیں۔ اس سلسلہ جاری رہے گا۔ مزید بستیوں میں کام چل رہا ہے، وہاں کی بھی جیسی ہی تصویریں اور ویڈیوز آئیں گی آپ کے سامنے پیش کر دی جائیں گی۔ آپ اپنے تعاون کو جاری رکھیں تاکہ ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ ہو اور رمضان میں ان لوگوں کے لیے بھی آسانیاں ہوں جس میں بیوائیں، یتیم اور مجبور اور محتاج لوگ ہیں۔ آئیے ناظرین گرامی، خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس وقت رمضان کے مہینے میں پورے بھارت میں فرقہ وارانہ فسادات پھیلانے کی کیا سازشیں چل رہی ہیں، اس طرح کے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، کیونکہ 3 ریاستوں کے 3 الگ الگ علاقوں میں کچھ ایسا ہی معاملہ پیش آیا ہے۔ سب سے پہلے ہم لوگ جس ویڈیو کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ امبرپیٹ کی ہے، حیدرآباد کی۔ جمعرات کی رات شیواجی جینتی کے موقع پر امبرپیٹ علاقے میں نماز تراویح کے دوران جامع مسجد کے پاس کچھ ہندوتوا شرپسند عناصر نے شرانگیزی پھیلانے کی کوشش کرتے ہوئے نماز میں خلل ڈالنے کی کوشش کی، اور پھر مقامی افراد کے بیان کے مطابق جامع مسجد امبرپیٹ میں تراویح کی نماز ادا کی جا رہی تھی۔ اس دوران شیواجی جینتی کا جلوس مسجد کے پاس پہنچا۔ ظاہر سی بات ہے کہ خاموشی سے وہاں سے گزار لیتے تھے تو ٹھیک تھا، لیکن یہ ہندوتوا درندے اپنی عادت سے مجبور کہیں یا شرارت کرنے پر جو ان کو اکسائی جاتا ہے، ان کو جو اکسایا جاتا ہے اس پر جو مسجد کے سامنے کھڑے ہو کر کے ڈی جے بڑے آواز میں اونچی آواز سے ریکارڈنگ کرنا شروع کر دیا، اور دانستہ طور پر شرارت کرتے ہوئے مساجد کے سامنے ناچنا اور مختلف قسم کے نعرے لگانا شروع کر دیا۔ شرانگیزی کرتے ہوئے نعرے بازی شروع کر دی۔ اس حرکت کی وجہ سے مسجد میں نماز ادا کرنے والے مصلیوں کو پریشانی ہوئی اور ان میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ اسی دوران مقامی نوجوان وہاں پہنچ گئے اور جلوس میں شامل شرکاء اور مقامی نوجوان کچھ دیر کے لیے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو گئے، جس سے صورتحال کشیدہ ہو گئی۔ صورتحال کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے پولیس کی بھاری جمعیت یہاں طلب کر لی گئی۔ ڈی سی پی دکشنا مورتی بھی رات دیر گئے یہاں پہنچ گئے، اور اس طرح سے یہ معاملہ جو آپے سے باہر ہونے والا تھا اس پر پولیس نے کنٹرول کر دیا۔ لیکن اس طرح کے موقع پر اس طرح کے جلوسوں کو کیوں بھیجا جاتا ہے، مساجد کے سامنے یہ درندے کیوں شرارت کرتے ہیں، اس بات کو لے کر کے جہاں سوالات اٹھ رہے ہیں، وہیں کرناٹک کے باگل کوٹ کا معاملہ بھی کچھ اسی طرح سے ہے۔ کرناٹک کے ضلع باگل کوٹ میں بھی شیواجی جینتی جلوس کے دوران ایک مسجد کے سامنے سے گزرنے پر تنازع پیدا ہو گیا۔ بعض ہندو تنظیموں نے ہمیشہ سے ہندوتوا درندے الزام لگایا کہ مسجد کی سمت سے پتھر پھینکا۔ ارے بھائی، آپ مسجد کی طرف جاتی کیوں؟ مسجد سے تو کوئی پتھر پھینکتا نہیں، وہ تو اپنی نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کو شرارتیں کرنی ہوتی ہیں، فسادات پھیلانا ہوتا ہے، مسجد کے سامنے چلے جاتے ہیں، پھر بہانہ بناتے ہیں، بلکہ ان کے خود آدمی کچھ پتھر پھینک دیتے ہیں، مسلمانوں پر الزام لگاتے ہیں، پھر حالات بے قابو کرتے ہیں۔ پولیس نے دونوں جانب جمع ہجوم کو منتشر کر کے حالات کو قابو کر لیا۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ جانچ جاری اور امن برقرار ہے۔ ادھر مدھیہ پردیش کے ضلع جبل پور کی تحصیل سیہورا کے وارڈ نمبر 5 آزاد چوک علاقے میں مندر میں آرتی اور قریبی مسجد میں نماز تقریباً ایک ہی وقت پر ادا کی جا رہی تھی۔ ایک طرف آرتی اتاری جا رہی تھی، دوسری جانب نماز ادا کی جا رہی تھی۔ اسی بات کو لے کر کے اسی دوران کسی بات پر تنازع شروع ہوا جو ہاتھا پائی اور پتھراؤ تک جا پہنچا۔ اطلاع ملتے ہی ضلع ہیڈ کوارٹر سے اضافی پولیس فورس روانہ کی گئی۔
दीगर थानों का अमला भी मौके पर पहुंचा। सिक्योरिटी इंतजाम सख्त कर दिए गए। किसी मजहबी मकाम को नुकसान नहीं पहुंचा और ना ही किसी जानी नुकसान की इत्तलात हैं, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक ही तर्ज के एक ही रात में किस तरह मुख्तलिफ वारदात पेश सामने आ रहे हैं। और ये सब शरारतें कौन कर रहा है, क्यों कर के हो रहा है, ये सब इंतज़ामिया जानती है, लेकिन इसके बावजूद इन लोगों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती। इस बात को लेकर के जो है सवालात उठाए जा रहे हैं। शाही ईदगाह और कृष्ण जन्मभूमि मामले में आज दोपहर 2 बजे से इलाहाबाद हाई कोर्ट में अहम समाअत शुरू हो चुकी है। महकमा आसार कदीमा यानी ESA अदालत में अपना जवाब दाखिल करेगा। जवाब दाखिल होने के बाद तवक्को है कि दोनों फरीक रिपोर्ट के मंदरजात पर अपनी अपनी दलीलें पेश करेंगे। बहक फ़ैसला आने के बाद पता चलेगा कि किस तरह से सुनवाई हुई और कोर्ट ने क्या कहा। उधर गुजरात में भी नाज़रीन गिरामी लगभग कई लाख लोगों के वोटिंग लिस्ट से नाम कट चुके हैं। गुजरात में वोटर लिस्टों की खुसूसी जामे नज़रसानी यानी SIR के बाद वोटरों की तादाद में नुमायाँ कमी दर्ज की गई है। इलेक्शन कमीशन के जारी करदा आदाद व शुमार के मुताबिक इस अमल के आगाज़ पर रियासत में वोटर्स की कुल तादाद 5,08,43,436 थी, जो नज़रसानी मुकम्मल होने के बाद घटकर 4,40,30,724 रह गई है। इस तरह मजमूई तौर पर 68,12,711 नाम फहरिस्त खारिज हुए हैं और वोटर लिस्ट में लगभग 13.40% कमी रिकॉर्ड की गई है। यानी कि 68,12,711 जो है नामों को वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। कमीशन के मुताबिक ये कमी बुनियादी तौर पर इंतकाल कर जाने वाले अफराद, मुस्तकिल तौर पर दूसरे इलाक़ों में मुंतकिल होने वाले शहरियों और एक से ज़्यादा मकामात पर रजिस्टर वोटरों के नाम हज़्फ किए जाने के बाइस हुई है। हुक्काम का कहना है कि नज़रसानी का मकसद इंतखाबी फहरिस्तों को दुरुस्त और शफ़ाफ बनाना है ताकि किसी भी किस्म की बेज़ाब्तगी की गुंजाइश बाकी नहीं रहे। नाज़रीन गिरामी, क्या ओम बिरला की शह पर राहुल गांधी जी को मारने की धमकी दी जा रही है? इस तरह की जो है इस वक्त कुछ वीडियोस वायरल होने के बाद सवालात उठाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है जिसमें कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी और 25 अरकान पार्लियामेंट को घर में घुसकर मारने की धमकी दी जा रही है। वीडियो में गुंडा सिफत एक शख्स खुद को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का हामी बता रहा है। इस वीडियो पर कांग्रेस ने अपना सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस वीडियो को शेयर करते हुए कांग्रेस ने सवाल पूछा है कि क्या ओम बिरला की शह पर राहुल गांधी जी को धमकी दी जा रही है? आखिर इस गुंडे की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उसने ओम बिरला का नाम लेते हुए धमकी आमेज वीडियो बनाई? कांग्रेस ने X पर शेयर उस वीडियो के साथ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को भी तनकीद का निशाना बनाया। पोस्ट में लिखा गया है कि ओम बिरला का लाडला BJP लीडर खुलेआम हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद राहुल गांधी और 25 अरकान पार्लियामेंट को घर में घुसकर गोली मारने की धमकी दे रहा है। ये नरेंद्र मोदी और उनकी हुकूमत की नफरती सोच का नतीजा है। सोशल मीडिया पर इस गुंडे की बहुत सी तस्वीरें और वीडियोस वायरल हैं जिनमें ओम बिरला के साथ नज़र आ रहा है। इस पोस्ट में कांग्रेस ने मुतालबा किया है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इस बात की जांच की जाए कि किसके कहने पर यह धमकी दी गई है। इस वीडियो को धमकी देने वाले आप नाज़रीन गिरामी यहाँ पर देख सकते हैं। जय ओम जी बिरला, जय नरेंद्र मोदी। जिस प्रकार से भारत की संसद में कांग्रेस के 25 सांसदों ने घुसकर और श्रीमान लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला से जो गाली गलौज करी है, उसकी हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, करनी सेना के कार्यकर्ताओं में काफी रोष भी आते हैं। दोबारा ऐसी घटना हुई उन सांसदों के घर में घुसकर हम तोड़फोड़ करेंगे। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी का आदेश पर यह घटना हुई है। राहुल गांधी कान खोल कर सुन ले, अगर दोबारा ऐसी घटना हुई तो तेरे घर में घुस के हम गोली मार देंगे और इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। हमारा प्रशासन से निवेदन है कि 25 सांसद के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मोदी सरकार के मंत्री किरण रिजिजू जी का जो बयान आया उसको सुनने के बाद हम लोग काफी गुस्से में हैं। अगर 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होती है उन 25 सांसदों की तो ठीक है, इस सभी के हम गोलियां मारेंगे एक एक करके। ये राज सिंह आमेरा संभाजी प्रवक्ता करनी सेना का ये बयान है। चाहे मुझे जेल हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जय हिंद, जय भारत। नाज़रीन गिरामी, ऐसा महसूस होता है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात पूरी तरह से कामयाब नहीं हुए।
या नहीं होने दिए जा रहे हैं। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस और सलामती कौंसिल के सदर को इरसाल किए गए ख़त में ख़बरदार किया है कि अगर अमेरिका अपनी फ़ौजी धमकियों पर अमल करता है तो ख़ित्ते में मौजूद उसके फ़ौजी अड्डे, तनसीबात और दीगर असासे ईरान के लिए जायज़ अहदाफ तस्वुर होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर अमीर सईद अरावानी ने अपने ख़त में कहा कि तेहरान ख़ित्ते में किसी भी मुमकिना फ़ौजी जारहियत के संगीन नताइज से आगाह कर रहा है और किसी भी हमले का फ़ैसला कुन जवाब दिया जाएगा। उनका कहना था कि ईरान जंग का ख़्वाह नहीं, ताहम अपनी खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करेगा। क्योंकि नाज़रीन गिरामी, इस वक्त ट्रंप का ईरान को अल्टीमेटम भी सामने आ गया है, फिर से धमकी दिया है और कहा है कि मुआहदा अगर नहीं हुआ तो संगीन नताइज भुगतने के लिए ईरान तैयार रहे। ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात मुस्बत रहे हैं और बामाना समझौता होना ज़रूरी है, वरना उसके नताइज बहुत संगीन होंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि वो ईरान के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन वो जौहरी हथियार नहीं रख सकता। उन्होंने मज़ीद कहा कि आइंदा 10 दिनों में ईरान के हवाले से तस्वीर वाज़े हो जाएगी। तेहरान पर हमला करने की तैयारी में भी है अमेरिका। F-22 और F-35 जंगी तैयारों से जो है घेराबंदी शुरू कर दिया है और ईरान ने नोटम जारी कर दिया है। जी हाँ, नोटम की वजह से पूरा ईरान नो फ्लाई जोन बन चुका है। ईरान ने नोटम पूरे मुल्क में रॉकेट टेस्ट के लिए जारी किया है, जबकि अमेरिका ने अपने F-22 और F-35 जैसे ख़तरनाक फाइटर जेट से ईरान की घेराबंदी करने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका इस हफ्ते के आखिर तक तेहरान पर हमला कर सकता है अगर मुआहदे मुकम्मल नहीं हुए। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने अपने ताकतवर F-35, F-22 जैसे फाइटर जेट्स ईरान के करीब तैनात कर दिया। उसके साथ ही 2 अमेरिकी कैरियर बैटल ग्रुप तेहरान के करीब मौजूद हैं, जिनमें से एक USS अब्राहम लिंकन ईरान के इंतहाई नज़दीक है, जबकि दूसरा USS जेराल्ड आर फोर्ड भी मशरिक़ वस्ता में दाखिल हो चुका है। वाज़ेह रहे कि ईरान के साथ जंग के ख़दशे के पेश नज़र अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता में फाइटर जेट्स और फ़िज़ाई बेड़े को तैयार कर लिया है। एक्सक्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की ये कार्रवाई ऐसे वक्त में हो रही है जब ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि ईरान के ख़िलाफ़ जल्द फ़ौजी कार्रवाई शुरू की जा सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में अमेरिका की किसी भी फ़ौजी कार्रवाई के तवील होने का इम्कान है, जो कई हफ़्तों तक जारी रह सकती है और एक मुकम्मल जंग की सूरत इख्तियार कर सकती है। तो नाज़रीन गिरामी, ये इस वक्त की ताज़ा सूरत हाल है, यानी कि मुज़ाकरात एक तरफ जारी हैं और दूसरी जानिब अमेरिका धमकी भी दे रहा है, तीसरी जानिब अपने हथियारात को ख़रीब भी कर रहा है ईरान के, जो उसके मुख्तलिफ़ बहरी बेड़े हैं। तो ईरान भी पूरी तरह से अपने पूरे के पूरे फ़िज़ाई इलाक़े को नो फ्लाई जोन करार दे कर के अपने हथियारात को टेस्ट कर रहा है। तो मतलब यही है कि मुज़ाकरात कामयाब होने वाले नहीं हैं, आर पार की लड़ाई हो सकती है, ये माना जा रहा है। उधर सऊदी अरब और बहरीन के दरमियान सफ़र करने वालों के लिए किंग फहद काज़वे करीब और आसान तरीन ज़मीनी रास्ता है। ममलिकत के मंतिक़े शर्क़िया के शहर दम्माम और बहरीन को जोड़ने वाले किंग फहद काज़वे पर सफ़र करने वालों के लिए नई फ़ीस का ऐलान कर दिया गया है, जो बुध 18 फरवरी 2026 से नाफिज़ अमल होगा। अखबार 24 के मुताबिक हो चुका है। अखबार 24 के मुताबिक शाह फहद पुल इंतज़ामिया की जानिब से जारी चार्ट के मुताबिक कार और मोटरसाइकिल के लिए 35 रियाल, मिनी बस 55 रियाल और बड़ी बस के लिए 70 रियाल और लोडिंग ट्रक्स के लिए 7 रियाल फ़ी टन के हिसाब से फ़ीस मुकर्रर की गई है। इससे कबल किंग फहद काज़वे पर छोटी गाड़ियों के लिए फ़ीस 25 रियाल मुकर्रर थी। नाज़रीन गिरामी, चूँकि ये पूरे के पूरे रास्ते को, पुल को समंदर पाट करके बनाया गया है, तो इस पुल को देखने के लिए, इस काज़वे को देखने के लिए लोगों का हुजूम होता है और यहाँ पर बड़े पैमाने पर ज़ाहिर सी बात है कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क के दरमियान में जो समंदर है, उस समंदर को काट कर बनाए गए इस रास्ते को देखने के लिए भी लोग आते हैं और एक मुल्क से दूसरे मुल्क को जाने के लिए आसानी भी है। और ऐसी सूरत हाल में जो है यहाँ पर आओ जाओ और लोगों की तादाद हद से ज़्यादा बढ़ रही है। ऐसे में अब इसको भी फ़ीस कर दिए जाने के बाद अलग अलग तरह के तबसरे सामने लाए जा रहे हैं। नाज़रीन गिरामी,
अमरीकी अरबपति और मारूफ सयाहती कंपनी रेड सी ग्लोबल की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जॉन पगानो इस्लाम कबूल करने के बाद अपने पहले रमज़ान मुबारक में रूहानी सआदतें समेटने के लिए मस्जिद हराम पहुंच चुके हैं, जिनकी तस्वीर इस वक्त अलग अलग तबसरों के साथ शेयर की जा रही है। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली पोस्ट और वीडियोस के मुताबिक जॉन पगानो को रमज़ान की पहली रात मस्जिदुल हराम में देखा गया। एक वायरल वीडियो में वो नमाजियों के दरमियान बाजमात नमाज अदा करते नज़र आए, जबकि दीगर मनाजिर में वो सफ़ेद सऊदी लिबास और रिवायती कैफिया में मलबूस खाने काबा की जानिब अक़ीदत के साथ बढ़ते दिखाई देते हैं। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर शेयर की गई वीडियोस में जॉन पगानो ने ख़ादिमुल हरमैन शरीफैन वली अहद शहज़ादा और सऊदी अवाम को रमज़ान मुबारक की मुबारकबादी पेश की। उन्होंने दुआ की कि अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने में ममलिकत सऊदी अरब पर अपनी ख़ास रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाएँ। तो नाज़रीन गिरामी, मस्जिद हराम के अंदर की इब्तिदाई रूहानी लम्हात की वीडियो अक्सर 2025 अक्टूबर में सऊदी शहद हासिल करने के फ़ौरन बाद बनाई गई थी, जो अब दोबारा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जॉन पगानो ने गुज़िश्ता बरस अक्टूबर में इस्लाम कबूल किया था, जो लगातार अलग अलग एतबार से तफसीरों के साथ इसको पेश करने की कोशिशें हो रही हैं। एक बार फिर से जो है ये तस्वीरें इस वक्त अलग अलग तबसरों के साथ जो है, और ज़ाहिर सी बात है कि रमज़ान के महीने में इस तरह की अलग अलग स्टोरीज़, अलग अलग अखबारात, अलग अलग सुर्खियों के साथ पेश करने की कोशिश करते हैं। कोई शॉर्ट्स में पेश करता है, कोई उसकी तफसीलात आपके सामने रखने की कोशिश करता है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।